میں خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا، لیکن ایک نقاب پوش عورت نے مجھے چند دنوں میں ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ اس نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا، مگر اس کی خاموش نگاہوں نے میرے اوپر ایک ایسی چیز چھوڑ دی جس نے مجھے مرنے کے قریب پہنچا دیا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ناقابل یقین اور خوفناک ہے۔ یہ کہانی ایک فن لینڈ کی ہے نا عجیب بات؟ فن لینڈ جہاں رنگ برنگی روشنیوں میں لوگوں کے قہقہے اور خوشی کے جذبات بکھرے ہوتے ہیں، وہاں خوف کا عنصر کہاں سے آیا؟ اس کہانی کو شہزاد نے کراچی سے بھیجا ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ 1985 کی بات ہے۔ ہمارا تعلق ناظم آباد سے ہے۔ میں اس وقت انٹر کا طالب علم تھا۔ میرا ڈیل ڈال عام لڑکوں سے بہت ہٹ کر تھا۔ پھر میں نے باڈی بلڈنگ کر کے اپنے آپ کو مینٹین بھی کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ مجھے اپنے آپ پر غرور بھی بہت تھا۔ میرے کچھ دوستوں نے تفریح کا پلان بنایا اور پھر سب نے پیسے جمع کیے۔ ایک سوزوکی بک کروائی گئی۔ ہم ساحل سمندر پر کھانا اور ضروری سامان لے کر پہنچ گئے۔ ایک بھرپور وقت گزارا۔ دوپہر کا کھانا وہیں پر کھایا اور پھر عصر کے بعد ہم کلفٹن کے فن لینڈ جا پہنچے۔ وہاں پر کافی رونق تھی۔ ہمارے دو ساتھی رحمان اور یاسر ٹکٹ لینے چلے گئے۔ ہم لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اطمینان سے دیوار سے ٹیک لگائے خوش گپیوں میں مگن تھا کہ اچانک دائیں طرف سے تیزی سے آتے ایک لڑکا مجھ سے ٹکرا گیا۔ شاید میں کچھ ڈھیلے انداز میں کھڑا تھا کہ میں زمین پر گر پڑا، اور میرے ساتھ وہ بندہ بھی جو مجھ سے ٹکرایا تھا۔ سین کچھ ایسا بنا کہ میرے دوستوں سمیت اطراف کے لوگ ہنس پڑے۔ میں ہمیشہ سے جذباتی رہا ہوں، کچھ اپنے اوپر گھمنڈ بھی تھا۔ میں نے اٹھ کر اس بندے کو گریبان سے پکڑ لیا اور لگا مارنے۔ وہ بیچارہ میرے آگے دھان پان سا تھا۔ وہ سوری کہہ بھی رہا تھا۔ میرے دوست فوراً بیچ بچاؤ کرانے کے لیے آ گئے، لیکن ان کے پکڑتے پکڑتے میں نے اس کے 2-4 لگا ہی دیے۔ میں نے ان کے چھڑاتے وقت اس کو جو دھکا دیا، وہ پاس گزرتی ایک عورت سے ٹکرا گیا۔ وہ عورت حجاب میں تھی۔ اس کا حجاب کھسک گیا۔ اس عورت نے جس غصے سے میری طرف دیکھا، میرا جو غصہ تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جیسے میرے دماغ میں اس کی آواز گونجی۔ وہ کہہ رہی تھی، اچھا نہیں کیا تم نے۔ میرے کانوں نے اس کے بغیر بولے اس کی بات سنی، اور پھر میں نے اس عورت کی غصے بھری نگاہیں ایک نرم تاثر میں تبدیل ہوتے دیکھی۔ وہ بغور مجھے دیکھتی نقاب سے اپنا چہرہ چھپاتی آگے بڑھ گئی۔ اس بندے کو اس کے ساتھی لے گئے اور مجھے میرے بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن میرے بلا وجہ کے غصے نے بڑھا دی۔ میرے دوستوں نے کہا اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ میرا دماغ اس عورت میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ کوئی حسین عورت نہیں تھی، نہ ہی میں کوئی ایسا ویسا لڑکا تھا۔ اس کا غصے سے دیکھنا بس وہ لمحہ جیسے میرے دماغ پر چپک گیا تھا۔ میرے دوست ٹکٹ لے آئے تھے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی اور ہم فن لینڈ میں داخل ہوئے۔ پہلی رائڈ ہی ہم نے کشتی کی لی اور اس کی سب سے اوپر والی سیٹ پر ہم جا بیٹھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میرا جوش و خروش اور ہی ہوتا۔ اس وقت تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں سب کے ساتھ آ کر بیٹھ تو گیا۔ کشتی جھولنی شروع ہوئی، پہلے ہلکی ہلکی اور پھر آہستہ آہستہ وہ تیز ہونا شروع ہوئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی تو میرا موڈ بھی ٹھیک ہو گیا۔ کشتی اب
ऊंचाई पर जा रही थी। लड़के हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि मेरी नजर नीचे खड़ी उसी हिजाब वाली औरत पर पड़ी। वो ऊपर हमारी कश्ती की तरफ ही देख रही थी। वो उसी कतार में थी जिन्होंने हमारी राइड के बाद इस कश्ती में बैठना था। उस पर नजर पड़नी थी कि मेरे दिल में फिर से बेचैनी शुरू हो गई। वो बेचैनी ऐसी थी कि मेरा दिल चाह रहा था ये कश्ती रुके और मैं इसमें से बाहर निकल जाऊं, और अगर ये नहीं रुकती तो मैं इसमें से कूद जाऊं। एक बार तो मैं थोड़ा लटक भी गया। वो तो मेरे पास बैठे मेरे साथी ने मुझे थाम लिया, वरना शायद मैं गिर ही जाता। अल्लाह अल्लाह करके ये कश्ती रुकी। मैं सबको धक्का देता नीचे की तरफ भागा। मुझे ये परवाह नहीं थी धक्का किसको लग रहा है, कौन चीख रहा है। मैंने नीचे उतरकर उस कतार में घुसना चाहा जहां वो औरत थी। वहां खड़े बंदे ने मुझे घुसने ना दिया। हैरान परेशान मेरे दोस्त भी आ गए थे। वो मुझे पकड़कर ले आए। मैंने गर्दन घुमा घुमा कर देखा, लेकिन वो औरत उस कतार से गायब हो गई थी। हो सकता है मुझे रश की वजह से नहीं दिख रही हो। अब कश्ती फिर से चलनी शुरू हो गई। वो इस कश्ती में भी नहीं थी। मैं कश्ती वाले झूले के पास सर उठाए ऊपर की तरफ देख रहा था और मेरे दोस्त हैरानी से मुझे देख रहे थे। एक दोस्त यावर जबरदस्ती मुझे वहां से कॉर्नर पर ले गया। एक लड़का भागकर जूस ले आया। यावर ने लड़कों को कहा, तुम लोग जाओ, हम आ जाएंगे। अब लड़के आगे चले गए। उसने मुझे जबरदस्ती जूस पिलाया। वो यही समझ रहा था शायद कश्ती में बैठने से मेरी तबीयत खराब हो गई। वो हैरान भी था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। थोड़ी सी देर में तबीयत कुछ बहाल हुई तो यावर ने कहा, चलो चलते हैं। यावर को बाकी दोस्त बताकर गए थे कि वो कहां जा रहे हैं। हम उनके पास जाने के लिए उठ गए। इस सारे वक्त में मैंने उससे कोई बात नहीं की, बल्कि मैं उसकी तरफ क्या किसी की भी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो बस यावर के साथ साथ चल रहा था। हम लोगों की भीड़ से गुजरते हुए रंग बिरंगी रोशनियों वाले बंद कमरे के पास जा पहुंचे। हमारे दोस्त वही थे। ये मिरर हॉल था, एक शीशे से बना कमरा जिसमें लगे हर शीशे में आपका अलग अक्स दिखता है। दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। मेरा भी मूड अच्छा हो गया। मैं उस चीज से निकल आया। इतना कमजोर तो मैं नहीं था कि उन बातों से हिल जाता। हमारा दोस्त टिकट ले आया। सब उस कमरे में जा रहे थे। मैं भी सबके साथ चल पड़ा। अंदर जाकर और हंसी मजाक का माहौल बन गया। मुझसे आगे मेरा एक दोस्त था। सबकी अजीब व गरीब छवि बन रही थी, मोटी पतली बेज़वी। जब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उस वक्त मैं अपने दोस्त पर हंस रहा था। हंसते हुए जब मेरी नजर शीशे पर खुद को देखने के लिए पड़ी तो मेरी हंसी गायब हो गई। शीशे में मैं ही था, लेकिन अजीब व गरीब हाल में। इतना कमजोर, लागर, पिचके गाल। मुझे धचका लगा। मैं जो खुद को बहुत अच्छे से कम पर देखना पसंद नहीं करता था, खुद को ऐसे देखकर मेरा दिल दहल गया। मैंने फौरन दूसरे शीशे में देखा, वहां भी मेरी यही छवि थी। तीसरे में देखा, उसमें भी यही, और जब चौथे में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे बिल्कुल ऐन पीछे वही औरत खड़ी थी। उसने नकाब लगाया हुआ था। अचानक उसने अपना नकाब उलट दिया। अब जो मैंने उसका चेहरा देखा, इतना करीहा सा चेहरा था, मैं अगले ही पल बेहोश हो गया। और फिर जो मुझे होश आया, मैं बाहर
बेंच पर लेटा था। मेरे अतराफ में मेरे दोस्त परेशान खड़े थे। वो तो हैरान भी थे। सब जानते थे शहजाद बड़े जिगरे वाला बंदा है। मैं जब उठकर बैठा तो मुझे सब याद आ गया। उस वक्त मैं अजीब व गरीब कैफियत का शिकार था। मेरे किसी दोस्त ने मुझे पानी की बोतल दी जो मैं गटागट पी गया। आखिरी घूंट लेते ही ऐसा लगा जैसे मेरे हलक में कोई सुई सी चुभी है। मैंने बस घर जाने की रट लगा ली और फिर हम यार दोस्त घर लौट गए। मैं सारा रास्ता चुप रहा। घर आकर भी किसी से बात नहीं की और अपने कमरे में जाकर सो गया। मैं छत पर बने एक कमरे में अकेला सोया करता था। रात को मेरी आंख खुली तो मुझे लगा अम्मी मेरे सिरहाने बैठी हैं। वो मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था। पानी पीने की वजह से अभी तक ये महसूस हो रहा था गले में कुछ अटक गया है। जैसे जैसे मेरे हवास बेदार हुए मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। अम्मी तो घुटने की तकलीफ की वजह से ऊपर आती ही नहीं थी। जैसे ही मैं ये बात मुकम्मल तौर पर समझा, मैं एक झटके से बिस्तर से उठ बैठा और फौरन लाइट खोल दी। कमरे में कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं लाइट खुली छोड़कर लेट गया और फिर नींद का इतना गलबा हुआ कि मैं दोबारा सो गया। अब की बार मैंने ख्वाब देखा। मैं वही फिनलैंड में हूं, हंसते खेलते लोग हैं और फिर मैं उस कश्ती वाले झूले पर जा बैठा हूं। झूला चलना शुरू हुआ और वही नकाब वाली औरत न जाने कब इस झूलते झूले में मेरे बराबर आ बैठी। उस पर नजर पड़ते ही मैं खौफ से जो उछला तो झूले से नीचे जा गिरा। इतनी जोर से गिरा कि उस जोरदार झटके से मेरी आंख खुल गई। मुझे समझ आ गया था कि यह ख्वाब है। मेरा पूरा जिस्म दुख रहा था। ऐसा लग रहा था मैं सच में ऊंचाई से गिरा हूं। ऐसे ही दर्द से तड़पते मैंने रात गुजारी। सुबह अजानों के वक्त सुकून हुआ और फिर मैं सो गया। दोपहर तक सोता रहा। वो तो यावर मुझे पूछने आ गया तो अम्मी ने उसको मेरे पास भेज दिया। उसने आकर देखा तो मैं बुखार में जल रहा था। वो मुझे उठाकर बमुश्किल सहारा देकर नीचे लाया। अम्मी परेशान हो गई। बाबा काम पर गए हुए थे। यावर ही मुझे बाइक पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। हमारे इलाके के सिंधी डॉक्टर अल्लाह वसाया नेक सिर्फ आदमी थे। बाबा से अच्छी सलाम दुआ भी थी। उन्होंने फौरन मुझे देखा, बल्कि अपने कंपाउंडर से कहकर मेरा हाथ मुंह धुलवाया। वो मुझे प्यार से हीरो कहते थे। मेरे लिए फिक्रमंद हो रहे थे। वो यही कह रहे थे हमारा हीरो बीमार की हो गया। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। यावर ने उनको कल वाले वाक़े की सारी तफसील बता दी। उन्होंने दवा देकर घर भेज दिया। अम्मी ने मुझे ऊपर जाने नहीं दिया, बल्कि वहीं नीचे लिटा दिया। अगले 4 दिन मुझे बुखार ने निढाल कर दिया। सोता तो वही झूले वाला ख्वाब देखता। मैं डर कर उठ जाता। बाबा दोबारा दवाई लेकर आए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। 4 दिन में मेरी सेहत बुरी तरह गिर गई। आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए। मैं जब होश में होता तो मुझे ऐसा लगता मुझे ऊपर मेरे कमरे से वो औरत आवाज दे रही है। मैं ऊपर जाना चाहता था। बाबा पकड़ लेते। एक बार तो आधी रात को आंख खुल गई। वो मुझे ऊपर से आवाजें दे रही थी। नजर बचाकर मैं सीढ़ियों तक तो पहुंच गया, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर पड़ा। बाबा सख्त परेशान थे। वो इस हाल में मुझे ले जा नहीं सकते थे। मेरी हालत बहुत खराब थी। इसीलिए डॉक्टर अल्लाह वसाया को घर ही बुला लिया। उन्होंने दवा तो दे दी, एक गिलास पानी भी मंगवाया।
और कुछ पढ़कर उसमें फूंक मारी और मुझे दे दिया। मैं पीना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाबा ने जबरदस्ती पिला दिया। वो पानी पीकर मुझे ऐसा लगा गले में ठंडक उतर गई हो। डॉक्टर साहब थे तो डॉक्टर, लेकिन अल्लाह वाले बंदे थे। वो मेरा मर्ज समझ गए थे। बाबा को उन्होंने कुछ समझाया और फिर वो बाबा को साथ लिए एक बुजुर्ग के पास चले गए। उन बुजुर्ग ने बताया, मेरे ऊपर कोई चीज आ गई है, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसने अपना झूठा इसे पिलाया है, लेकिन कब पिलाया पता नहीं था। बाद में पता चला, जब मैं बेहोश हुआ था तो लड़के पानी लेने गए तो किसी ने पानी की बोतल उनके हाथ में दी थी। वही पानी मैंने पिया था। एक लंबे इलाज का सिलसिला चला। मैं कुछ ठीक होता तो फिर वही ख्वाब या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जो मुझे वापस खींच लेता। मैंने ऊपर जाकर सोना छोड़ दिया, बॉडी बिल्डिंग भी छोड़ दी। मैं पहले जैसा ना रहा। मेरा दिल किसी चीज में नहीं लगता था। यहां भी डॉक्टर साहब ने मेरी रहनुमाई की, मुझे नमाज की तरफ राग़िब किया। हमारे घराने में नमाज की कोई पाबंदी तो वैसे भी नहीं थी। बस जब दिल चाहता तो पढ़ ली जाती, वरना नहीं। मैं तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता था। मैं इस हादसे के बाद नमाजी हो गया। अगर मेरा मसला पकड़ में ना आता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। हाँ, लेकिन मैं दोबारा कभी जिंदगी में फनलैंड नहीं गया। अगर मैं दूर से भी उसकी लाइटें देख लूं तो मुंह मोड़ लेता हूं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।